है सर Yes, है। yes, yes. I, Dr. Sant Kumar Verma, Associate Professor and Coordinator IPR Cell, welcome respected Sri Praveen Garg, Chairman ISF College of Pharmacy. Welcome, Dr. Rahul ji, and good morning, everyone. Good morning, sir. Good Very morning, good sir. morning, sir. Good morning, I sir. am audible. Good morning, sir. Yes. Hello, hello. So, good morning, everyone. Good Good morning, sir. morning, Dr. Good Rahul morning, Taneja sir. ji, Good morning. and welcome on the special occasion of the World IP Day. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, ji, we can start. Yes. Hello. Yes, yes, sir. So, YouTube is online is ready. Sir, it is already streaming. We can start, sir. We were just waiting for your permission. Today's chief guest is Dr. Sri Praveen Garg ji and guest of honor Engineer Janesh ji. Yes, sir. Sir, can I start? Hello. Ma'am, I am audible. Hello. Yes, please. Yes. A very good morning, everyone. I, Dr. Sant Kumar Verma, Associate Professor and Coordinator IPR Cell, welcome respected Chief Guest Sri Praveen Garg ji, Chairman ISF College of Pharmacy, Guest of Honor Engineer Janesh Garg ji, Chairman the Learning Field, a Global School, and Secretary ISF College of Pharmacy, Moga, Professor Dr. GD Gupta ji, Director ISF College of Pharmacy, Moga, Professor Dr. R.K. Narang sir, Vice Principal ISF College of Pharmacy, Moga. Our today's speaker, Dr. Rahul Taneja sir, scientist, studies, faculty members, and participants to the top on IP, accelerating innovation and creativity, organized by ISF College of Pharmacy, the aegis of IIC and Spices, that is a scheme for promoting interest, creativity, and ethics among students on the occasion of World IP Day. So I want to congratulate every participants on the World IP Day. With these words, I would like to request our ever motivating and dynamic director, sir, for welcome speech and brief about the national workshop. So, welcome, director, sir. So, thank you very much, Dr. Santji. I am audible. Hello. I Sir, am you are audible. audible. Yes, sir, you are audible. Yes, sir, audible. So, thank you very much. Good morning, everyone. Yes. So, good morning, everyone. Today's chief guest, Sri Praveen Garg ji, guest of honor, Engineer Janesh Garg ji, Chairman TLF, a global school, and our Vice Chairman of IIC, Professor Dr. R.K. Narang ji, and Vice Principal, ISF College of Pharmacy, and today's very dynamic, renowned, dedicated for the
IPR, Dr. Rahul Taneja ji, expert of today's World IP Day. All these HODs, faculty members, and organizing team, Dr. Sant Kumar Verma ji, Dr. Pooja Chawla ji, all the participants from various states at professor, associate professor, directors, principals, and students, those who are connected with this webinar through the Google Meet as well as the YouTube. So first of all, I, from core of my heart, I welcome today chief guest of honor, experts, all these faculty members, organizing committee, and also welcome the participants of this webinars. So as you know that we have planned this webinar in the form of the not in the online mode. This is the purely it was on the offline mode, but due to some reasons, so we are going to organize this event in the form of the online mode. So I know that nowadays government of India as well as our all professional bodies, they have also granted permission. We can organize such types of the activity also in the online mode. After the COVID, even the presentation of the PSD and all, it will be the in the form of the permission. So we are also doing this types of the take the benefit, as well as I have request to the expert. So first of all, I am thankful to the Dr. Rahul Taneja ji. Even he moved from their native place and he traveled near about the 20 kilometer. After that, he received the phone. He accepted our invitation. That is the no problem. He will deliver the lecture on the online mode. So as you know that the theme of this year 2023 Women as IP, accelerating innovation and creativity. So this is the theme of this year. Why the IP? So as you know that World Intellectual Property Day is celebrating every year on the 26th of the April with the aim to raise awareness about the IPR and their protection. It helps the peoples to understand what is the copyright, what is the trademark, what is the patent, and what is the utility of nowadays Indian scientists they are patent. What if you can go through the study of the last 10 years, the data was very poor. So the protection of the IP, this is our moral duty. So the world IPR we have to the organize on the basis of the declared by the 26th meeting of the WIPO, and it is come in the force in 2000. The main agenda and behind the celebrating of this IP day is to raise the awareness about the IP and how to protect the things which our we have generating why our art, why our intelligence, why our innovation, and number of things we have from the geographically as well as number of the things we have generated why their own idea. So all together we have to the organize this webinar on the basis of the opportunity to each and everyone, what sometimes due to the net connectivity and some of the technical problem, it will create the some of the problem to understand the thing. So the concept behind of this day was first to share the each and everything to the individual, come to know that what is the IP, how to protect the IP, and what is the value.
number of the question, yeah, even I have also, so that I come to know that how we can protect our originality like that. Nowadays, ARIA as well as the NRI app at the initial level in the ARIA and NRI app only the patent. Now design patent, copyright, each and everything they have given the value. So gentlemen, I hope that this types of the webinar, it will be the helpful to the everyone. And as you know that Dr. Rahul Taneja ji, he is a very expert and very dynamic and tuned with the latest term and technology related to the IPR. So I hope that if you have any doubt, any question, he will try to clear immediately. And if they have some of the problem, then I hope that you can also send the mail to direct to the Dr. Rahul Taneja ji or to our organization team. So this is our moral duty to inform all the participants. First of all, I congratulate to our organizing team, coordinator of this day celebration, Dr. Sant Kumar Verma ji, taking lot of the pain, and that have to come to in a big of the registration. So I just want to inform that 500 registration we have received from 18 states. And before to this, we have organized one of the online test. So number of the persons they have obtained 49 marks out of the 50. So this is the near about 6%. And same 48 marks obtained by the 5% and 3% on the third position. So this is the results of this day we have to the celebrated in the quiz. And now this is the time to we can engage with the Dr. Rahul Taneja ji talk. And I don't want to take more time. Again, I am thankful to the our IPR cell. I am thankful to the IIC as well as Spices. This grant is received from the AICT, and during the Spices we are organizing so many types of the activity which are required for the benefit of the student society as well as the students also. So thank you very much, Dr. Sant Kumar Barmaji, for provide this opportunity and all you. Uh, Thank you, respected director, sir, for brief about the today's national workshop and about the our speaker Rahul Taneja, sir. Uh, One more Ramji, I important want to request announcement to all. before First, inviting. you can open the first time of the video so that we can click one of the photo screenshot. Second thing, if you have no any question, you can mute yourself, and after the end, you can unmute and ask the question. So please open your video so that we can take one of the good screenshot. Everyone requested, please switch on your video for a screenshot purpose. Okay, no problem. I hope some of the technical problems. So, Okay. Dr. Sandeep, please continue. Yes, as director, sir said that uh, all online participants can ask their question on YouTube chat box with the expert, and expert try to answer them. So, with these words, I would like to introduce our today's speaker, Dr. Rahul Taneja, sir. Rahul Taneja sir is working as scientist, Department of Science and Technology, Government of Haryana, Panchkula. He holds professional degree including Doctor of Philosophy in Pharmaceutical Sciences, Master of Intellectual Property Law, Master of Pharmacy, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Intellectual Property Rights and Patent Practices, Master Trainer of European Patent Office and World Intellectual Property Organization, and Postgraduate Diploma in Drug Regulatory Affairs and Clinical Trials.
As a scientist at the Council of Science and Technology, Sir facilitates the micro, small, and medium enterprises of Haryana and Chandigarh for IPR related issues. Sir portfolio further categorically include dealing with patents, including PCT applications, trademarks, filing of other notices, copyrights, designs, and all IPR parts. Sir was the Bentham brand ambassador during the 2018 and 19. Sir has also promoting and facilitating the research scholars, doctors, and scientists for the protection of intellectual property rights and to protect their invention and innovation. He has also delivered 5 times live broadcasting on news channel to the enterprises of Haryana cluster and 2 radio talks on the day of World Intellectual Property Right Day. He has own intellectual property in which 4 copyright and 2 industrial design and 3 patent filed in his own credibility. He is also awarded as significant contribution in healthcare by All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. Sir has backed 40 journal publications on various IPR issues and concepts beside article in various newspapers and newsletters. He has already delivered more than 320 specialized lecture in various national and international conference and training programs on IPR in various institute and industrial association, including Ministry of MSME, Micro, Small and Medium Enterprises Development Industries, Karnal, Micro, Small and Medium Enterprises Development Industries, MSMEDI, Ludhiana, and other reputed institution of national and international reputes. So, with these words, I heartily welcome our today's expert and scientist, Dr. Rahul Taneja, sir, for his talk. Welcome, sir. Thank you so much, Sanji. Respected Chairman, sir, Vice Chairman, sir, my guide and mentor director, Dr. G.D. Gupta, sir, Dr. Pooja Chawla, ma'am, Dr. Shamsher, sir, Dr. Rajkumar, sir, other faculty members, and dear participants. So, today is 26th April 2023, the day of World IPR Day. And the theme of this is today is Women and IP Accelerating Innovation and Inventions. Do you have any idea how many patents filed by women in our country? Not in our country, even across world. What is the contribution of women in the field of invention? In India, only 10 to 20% application filed by women in which inventor is women. Not in our country India. अगर हम बात करें चाइना की, वहां पर भी 30% है, और अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वहां पर भी 10 to 20% ही. So first of all, congratulations to all the women for this day, because this year theme is dedicated to women IP. Let me start with my PPT before I will show you the video in which they have clearly mentioned that what is the contribution of women in the field of IP across the world.
सर वीडियो चल रहा है सर। सर आवाज नहीं आ रहा। हाँ बस वॉइस नहीं है सर, उसमें सिर्फ वीडियो ही है। ओके Okay. Thank you so much. So, have you seen in this video? There is a one woman from India, Kiran Majumdar, the director of Biocon company. उसमें कुछ ही वुमेन्स की फोटोग्राफ थी, लेकिन ये हमारे लिए प्राउड का मोमेंट है कि वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया आल्सो। और ऐसे ही काफी सारी वीडियोस वाइपो की वेबसाइट पे अपलोड हैं, जिस पे उन्होंने दिखाया है कि वुमेन की कंट्रीब्यूशंस क्या हैं इन कोविड टाइम्स। लेकिन स्टिल इट इज माय रिक्वेस्ट टू ऑल दी वुमेन्स, kindly motivate yourself in the field of IP. You can earn lot of money not by filing only patent. You can also earn by protecting your brand name by the trademark. अभी एक और वीडियो भी है जिसमें एक वुमेन लेडी ने, जिसमें उसने एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और वो ईटेबल भी हैं, उसको आप खा भी सकते हैं, ड्यूल पर्पस आप उसको यूज कर सकते हैं। Such type of small inventions can just change the lives of the people. So we have to take motivation from that person कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ये थीम आया तो मैंने इसका डाटा सर्वे कलेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वुमेन एम्पावरमेंट्स के लिए, आपको लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि पेटेंट फाइलिंग में अगर आप एक वुमेन एप्लीकेंट है तो आपका पेटेंट फास्ट ट्रैक से कंसीडर होता है। मीन्स यू विल गेट ए पेटेंट मैक्सिमम विद इन 1 year if one woman applicant available in the applicant list. So this is the benefit. Otherwise, if you are a startup, MSMEs, or you are filing your patent application from International Search Authority and choosing India as a primary country, then your application will be considered as at a fast track. So there is one another video. Innovation by women are changing the world.
rights. First one is the trade secrets, copyright, industrial designs, trademarks, geographical indications, utility models. यूटिलिटी मॉडल्स जो है हमारी कंट्री में अभी अवेलेबल नहीं है। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ यूटिलिटी मॉडल क्या होता है, क्योंकि बहुत जल्द इंडिया में भी यूटिलिटी मॉडल आने वाला है। बेसिकली यूटिलिटी मॉडल क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंशंस हैं, जैसे आप डिजाइन फाइल करते हैं, उसमें टेक्निकल फीचर प्रोटेक्ट नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत जल्द यूटिलिटी मॉडल भी इंडिया में एप्लीकेबल करेगी, जिसमें आपको स्मॉल इन्वेंशंस के लिए 7 इयर्स के लिए राइट्स मिलेंगे और आप अपनी स्मॉल इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ए यूटिलिटी मॉडल। अदर कंट्रीज में ये अवेलेबल है, लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, चाइना, वहां पर यूटिलिटी मॉडल आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में अभी यूटिलिटी मॉडल का कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स क्या है? बेसिकली जो फार्माकोग्नोसी के पीपल है वो इनको समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं पेटेंट पे, डिजाइन पे। लेकिन अगर आपने प्लांट की कोई नई टाइप की स्पीसीज को डेवलप किया, जैसे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो इंडिया में मैक्सिमम न्यू प्लांट वैरायटीज को प्रोटेक्ट करती है और अपनी प्रोटेक्शन को वर्ल्ड वाइड वैलिडेट करती है। लाइक जैसे आपने देखा होगा बासमती हो गया, उसकी स्पीसीज को, या प्लांट की इतनी सारी स्पीसीज को आते हैं, आप नए स्पीसीज को डेवलप करते हैं तो उसको भी आप इसके थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनफेयर कंपटीशन जो है इंडिया में अभी ये आईपीआर के अंदर कंसीडर नहीं होता, ये अदर एक्ट के अंदर आता है, लेकिन स्टिल इट इज द वन ऑफ द आईपी राइट्स। पेटेंट्स का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन कैसे है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल थिंक लाइक दैट कि हम पेटेंट किस लिए करवाएं। जैसे संजय जी से कल डिस्कशन हो रहा था कि सर यू आर लिविंग सो मेनी लेक्चर्स, बट द मेन क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द पेटेंट? द मेन बेनिफिट ऑफ द पेटेंट, यू कैन प्रोहिबिटेड अदर पर्सन फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग ऑफ योर इन्वेंशन। अब क्या आपने पेटेंट ले लिया तो आपके पास ये अधिकार है कि आप अपनी इन्वेंशन को मार्केट में ओपनली बेच सकते हैं? इट्स नॉट लाइक दैट। आप ऐसे नहीं बेच सकते। फर्स्टली यू हैव टू चेक द फ्रीडम टू ऑपरेट। व्हाट इज द फ्रीडम टू ऑपरेट? सपोज इफ यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, मान लीजिए आपने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। इफ यू आर developing some new device and you are going to promote your product in the market, but are you sure that कि आपने उसमें जितने भी डिवाइस यूज किए हैं उसमें से कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो पेटेंटेड नहीं है? टू चेक द वैलिडिटी ऑफ दैट डिवाइस इज कॉल्ड फ्रीडम टू ऑपरेट। मींस आप अपने प्रोडक्ट के अंदर जितने भी इंडिविजुअल डिवाइसेस यूज कर रहे हैं उसकी पेटेंट की वैलिडिटी को भी चेक आपको करना पड़ेगा। देन यू विल गेट ए स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोटेक्शन। और मैं तो इसको सिंपल लैंग्वेज में कहता हूँ, इट्स ए वरदान ऑफ 20 सेंचुरीज। क्योंकि पहले क्या होता था, लोगों को वरदान मिलते थे कि यू विल बी द ओनली पर्सन जो ऐसा कर सकता है, एंड द इन द पेटेंट राइट्स यू विल बी द ओनली पर्सन जिसके पास उसको बनाने के ये अधिकार है। और मे बी इट्स सीम्स लाइक ए फनी, बट फार्मा कंपनी इससे बहुत पैसा कमाती हैं। इट्स लाइक ए वरदान। अब नोवार्टिस का आपने केस सुना होगा, दे हैव ए राइट्स ऑफ इन 44 कंट्रीज, still they are developing their compounds and changing the solubility, and again they are filing for the patent application to gain the rights for the modification of that patent for next 20 years. Still honorable supreme court has refused that patent application because already they have taken a lot of money from the people and get a benefit from that invention. So कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में जो पेटेंट एक्ट है वो एक बैलेंस एक्ट है, उसको एक बैलेंस तरीके से बनाया गया है ताकि कोई भी उसको यूज और मिसयूज ना कर सके। नेक्स्ट वन इज द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ना पीपल इज थिंकिंग लाइक दैट कि क्या सिर्फ हम सर पैसा पेटेंट से ही कमा सकते हैं, यू विल गेट ए राइट्स ओनली ऑन द पेटेंट राइट्स। इट्स नॉट लाइक दैट। योर कैंपस इज इन पंजाब एंड पंजाब इज आल्सो पॉपुलर। फर्स्ट वन इज पॉपुलर फॉर द एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर एंड नेक्स्ट पॉपुलरिटी इज फॉर द पंजाबी सॉन्ग्स। कोई भी इंडिया में किसी भी रीजन में अगर मैरिज हो रही हो और वहां पर पंजाबी गाना ना बजे तो वो शादी पूरी नहीं होती। सो वन ऑफ द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पंजाब इज म्यूजिक एंड पंजाबी म्यूजिक। हाउ टू प्रोटेक्ट ए पंजाबी म्यूजिक? पंजाबी म्यूजिक, इवन एवरी म्यूजिक इज प्रोटेक्ट बाय द कॉपीराइट। यू विल गेट एक्सक्लूसिव राइट्स टू reproduce, distribute, publish, display, perform it publicly or other derivative works related to their creative works. कॉपीराइट सिर्फ आपको लिटरेरी वर्क के लिए मिलेगा, ड्रामेटिक वर्क के लिए मिलेगा, म्यूजिकल वर्क के लिए मिलेगा, आर्टिस्टिक वर्क के लिए मिलेगा एंड सिनेमेटोग्राफी वर्क के लिए मिलेगा। अभी आपने देखा होगा कुछ एक डिस्प्यूट्स होते हैं जो म्यूजिक इंडस्ट्रीज में होते हैं कि किसी ने उस लिरिक्स के अंदर
और जैसे मैंने देखा आजकल यूट्यूब का टाइम है, आपके फैकल्टी भी काफी सारे यूट्यूब के ऊपर सेशन अपलोड्स होते हैं। अगर आपने एक बात नोट की होगी, अगर आप अपने वीडियो में किसी का भी म्यूजिक मोर देन 6 सेकंड से ज्यादा अपलोड करेंगे, जैसे आपको डालना पड़ जाता है कई बार किसी भी कंपनी का, तो वो वीडियो वहां से ब्लॉक हो जाएगी। तो मैक्सिमम टाइम लिमिट इज टू यूज दैट म्यूजिक अप टू 6 सेकंड। उससे ज्यादा अगर आपको उसको अपलोड करना है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम दैट कंपनी। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो इन चीजों का ध्यान रखते हैं, अदरवाइज उनका वहां से कंटेंट को रिमूव कर दिया जाता है। और पर्सनली आई बिलीव दैट कि कॉपीराइट से लोग ज्यादा पैसा कमा रहे हैं इन इंडिया में एज कम्पेयर टू पेटेंट राइट्स। अभी एक मूवी रिलीज हुई RRR। एक मूवी रिलीज होती है, द टाइम पीरियड ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट मूवी इज जस्ट 1 मंथ। उन्होंने 1 महीने के अंदर 1100 करोड़ रुपए कमा लिए। स्टिल उनको अभी ऑस्कर अवार्ड मिला, दोबारा से उसकी इवैल्यूएशन इंक्रीज हो गई आफ्टर द अवार्ड्स। मींस अब उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म पे कुछ टाइम के लिए उस फिल्म को अलाउ किया था, उसके बाद उन्होंने अपने एग्रीमेंट को दोबारा से रिवाइज किया और अपने प्राइस को इंक्रीज किया। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। सेमीकंडक्टर चिप, दिस इज वेरी सैड टू नो दैट इन आवर कंट्री ओनली वन एप्लीकेशन इज फाइल्ड इन सेमीकंडक्टर चिप प्रोटेक्शन। हमारी कंट्री में सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फाइल हुई है इसमें। ये राइट्स देते हैं एक्सक्लूसिवली कि आपने अपने कोई कंडक्टर चिप्स बनाई, सेमीकंडक्टर चिप्स, और वो आपकी ओरिजिनल है, यू विल गेट राइट्स ऑन दैट सेमीकंडक्टर चिप प्रोटेक्शंस। ट्रेडमार्क, एंड द पीपल आर थिंकिंग लाइक दैट कि सर ट्रेडमार्क बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रेडमार्क। आने वाले टाइम में इन फ्यूचर इतने पेटेंट के केसेस नहीं होंगे जितने इंडिया में ट्रेडमार्क के केसेस होंगे। बहुत जल्द हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसकी कोर्ट्स होंगी, क्योंकि पीपल आर अवेयरिंग अबाउट टू प्रोटेक्ट देयर ब्रांड नेम्स। आज के टाइम में लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं। जब से हम, कोरोना से पहले भी लोग इंटरनेट का, टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, लेकिन आफ्टर कोरोना पीपल आर हैप्चुअल अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इफ यू आर लॉन्चिंग योर प्रोडक्ट ऑन Amazon and Flipkart, without the protection of the trademark, you can't use your product on that portal. इवन कि अगर आपका कॉलेज सेल्फ फाइनेंसिंग है या गवर्नमेंट है और आपने जेम से प्रोडक्ट खरीदना है, अगर आपके पास ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन नहीं होगा तो वो राइट्स नहीं मिलेगी। Sir, is there any problem? Sorry, sir. जी So, sir, जी sir. the development of technology from knowledge generation to diffusion. This is a very important slide and best basic slides. Suppose सबसे पहले आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, आप अपनी बुक्स पढ़ते हैं, उस बुक से पढ़कर आप अपनी थ्योरी पढ़ते हैं, नॉलेज पढ़ते हैं, और उस नॉलेज से आपके माइंड में एक आइडिया आता है। उस आइडिया से आप अपनी एक इन्वेंशन को डेवलप करते हैं, इन्वेंशन। और पेटेंट जो मिलता है हमेशा इन्वेंशन के लिए मिलता है, डिस्कवरी के लिए नहीं मिलता, और मोर ओवर इनोवेशन के लिए भी नहीं मिलता। बट द डेफिनेशन ऑफ इनोवेशन इज वेरी डिफरेंट एज वी रीड दैट। Sometimes people said that if your product is if your product is commercialized in the market, that is innovation. If there is some type of modification, that is called innovation. So invention converted into innovation, and after that diffusion. Then what is the supply side? मान लीजिए आपने अपने प्रोडक्ट को सही टाइप से प्रोटेक्ट नहीं किया, नॉट इन द फील्ड ऑफ पेटेंट, इवन की इन द फील्ड ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, तब भी आपके प्रोडक्ट की इमिटेशन हो सकती है। आई एम फ्रैंकली स्पीकिंग टू यू, मेरे पास हर महीने 4 से 5 इंडस्ट्रीज ऐसे आते हैं जो कहते हैं तनेजा जी हमारा ट्रेडमार्क कॉपी हो गया, हमारा ब्रांड नेम कॉपी हो गया। जस्ट टू सेविंग 5 to 6,000 रुपीज वो अपने प्रोडक्ट को बचाते हैं 6,000 रुपए के पीछे, और बाद में उनको लिटिगेशन में लाखों रुपए खर्चने पड़ सकते हैं।
So be careful when you are selecting your products, when you are choosing someone else innovation invention. उसके बाद क्या होता है आपका प्रोडक्ट, सम पीपल थिंक दैट कि आईपीआर में हमने पैसा लगाया तो हमें फ्यूचर में जाके प्रोटेक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, बट बेसिकली आईपीआर इज द बेसिक बैकबोन ऑफ एवरी इंडस्ट्री, नॉट इवन इन फार्मास्यूटिकल साइंस, इवन एवरी इंडस्ट्री. आपने देखा ब्रांड इवोल्यूशन होती है. अब ब्रांड इवोल्यूशन कैसे डिसाइड की जाती है कि उसकी मार्केट में कितनी वैल्यू है. अगर आपने पीछे न्यूज सुना होगा कि बिस्लेरी को सेल करने का माइंड चल रहा था और उसे काफी कंपनी ने ऑफर किया. बिस्लेरी का पानी तो कोई भी भर लेगा बोतल के अंदर. द वैल्यूएशन अबाउट द ब्रांड नेम एंड द शेप ऑफ द बॉटल्स, दैट इज द मेन आइडेंटिफिकेशन. अब इन द केस ऑफ सप्लाई साइड्स इमिटेशन क्या होता है, वन ऑफ द पॉपुलर कंपनी ऑफ मोहाली, नेम डिस्क्लोज नहीं कर सकता बिकॉज इट्स ए कॉन्फिडेंशियल, वो एक डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं जिसमें 5 कंपोनेंट यूज करते हैं, having some different uses and every component has their own therapeutic value. And somebody is challenged that कि सर इसमें से 3 कंपोनेंट हमारे पेटेंट है, इसमें से 3 कंपोनेंट हमारे पेटेंट है with particular composition. So my question to all the students, is it infringement or not? What is your opinion? Please answer me. What is your opinion? Sir, what's the question? मान लीजिए आप डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं, उसमें 5 कंपोजिशन है, 5 कंपोजिशन, 5 इंग्रेडिएंट है और 5 इंग्रेडिएंट की अपनी अपनी थेरापेटिक वैल्यू है एट ए डिफरेंट कंपोजिशन. क्योंकि ये बेसिक नॉलेज है, अवेयरनेस बहुत हो गई है, ये जो साइंस का बिल्कुल कोर पार्ट है इन्फ्रिंजमेंट का, वो आपको समझना है. अंडरस्टैंड? और कोई आगे चैलेंज करता है कि सर इसमें से जो 3 प्रोडक्ट, 3 जो आपके कंपोजिशन के कंपाउंड है, सपोज आपके पास ए बी सी डी ई एफ है और हर एक की एक पर्टिकुलर वैल्यू है और आपको कोई क्लेम कर रहा है कि एबीसी का पेटेंट मेरे पास है, तो क्या वो आपको रोक सकता है? यस और नो? नो. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आप भी फार्मास्यूटिकल के टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, आप कंपाउंड बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज कॉल्ड फ्रीडम टू ऑपरेट सर्च. इज इट इन्फ्रिंजमेंट और नॉट? No, sir. No, sir. यस सर. नितिन सर, इज इट राहुल सर, इन्फ्रिंजमेंट और नॉट? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन्फ्रिंजमेंट तब होगा जब वो रेस्ट 2 कंपाउंड किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट को सिनर्जाइज कर रहे हैं, तो इट इज नॉट द इन्फ्रिंजमेंट. एब्सोल्युटली राइट. अगर उन 2 कंपाउंड से आपकी सिनर्जिस्टिक वैल्यू चेंज हो रही है, देन इट इज नॉट एन इन्फ्रिंजमेंट. अगर वो 2 कंपाउंड जो लास्ट में 2 कंपाउंड्स है वो जस्ट एक एडिटिव्स है जो आपकी टैबलेट को, पाउडर को, कैप्सूल को सिर्फ स्टेबलाइज कर रहे हैं, देन इट इज एन इन्फ्रिंजमेंट. देन व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति आपको रोक देगा कि ये ब्रांड नेम आपने नहीं बनाना. दिस इज कॉल्ड अबाउट द सेक्शन 3D, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि अगर आपके कंपाउंड में कोई सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मॉलिक्यूल चेंज करता है तो आप उसको पेटेंट के लिए फाइल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपने कोई डेरिवेटिव बनाया और उसकी सिनर्जिस्टिक और एफिकेसी वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होगा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ सेक्शन 3D. So next one is the innovation process. Innovation process is सबसे पहले आपने इन्वेंशन बनाई, आपने सोचा कि उसको हम किस तरीके से इन्वेंट करेंगे, उसके बाद आपने उसको इनोवेट किया एंड आफ्टर दैट द अडॉप्शन ऑफ इनोवेशन बाय सिमिलर फर्म्स. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ, कॉपी कैसे होता है? ये आपने डॉक्टर को रिकमेंड किया कि सर आप मेरा प्रोडक्ट इसको रन कीजिए, मार्केट में वो सेल होता है, दूसरे कंपटीटर बताते हैं बाय केमिस्ट और बाय होलसेलर, दिस प्रोडक्ट इज वाइडली यूज्ड बाय दैट डॉक्टर, काइंडली यूज दैट कंपोजिशन एंड मैन्युफैक्चर सेम प्रोडक्ट्स. वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर वो रेडी नहीं है उसको बनाने के लिए, वो दूसरे कंपटीटर को कहते हैं कि आप इसको बनाइए. दैट द पॉइंट्स where is the imitation is started.
जहां से उसको डुप्लीकेसी को और प्राइवेसी उसके प्रोडक्ट को इन्फ्रिंजमेंट करने की कोशिश की जाती है. So this is the whole process of the innovation. So innovation starts from the idea and concept, जो एप्लीकेशन से पहले स्टार्ट होता है. Some people think like that कि सर हम पहले अपना हाइपोथेसिस सबमिट कर देते हैं, after that we can decide. But it depends on the research, development, production, and marketing use of the product. So this is the translation of creative idea into useful application. First, you have to identify the product design marketing strategy. ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया. मोस्ट ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन फाइल इन आवर कंट्री, बट people are not understanding that it is a commercialized or not. क्या जरूरी है कि हर पेटेंट कॉमर्शलाइज के लिए बेनिफिट होता है? इट्स नॉट लाइक दैट. हाउ मेनी पेटेंट इज कॉमर्शलाइज इन आवर कंट्री? और less than 10% is patent is commercialized in our country. What about the rest of the patents? Rest of the patent is just a wastage of money, wastage of time, or sometime it is used to block to other competitor to enter their domain name. So this is the analytical planning, how to develop a product strategy that is useful for the market or not. After that, you have to collect the materials, technology, human resources, and capital. After that, you have to develop the prototype of that invention, and you have to invent according to the manufacturing services available in our country. After that, you will get a rewards to your employees after the complete process when your product is commercialized in the market. And what is the profitability of innovations? Profit from innovation, you will get a value of your invention, and innovator's ability to appropriate value from an inventions. You will get a legal protections, complementary services, and you will get a lead time to motivate to add some initiative in your technology. So this is the basically commercialization model of your invention. First, you have to identify what is the use of that products and what is the need of the R&D in the field of inventions. You have to generate new product and you have to submit your proof of concept for the product development. After that prototype is ready, and you have to invest your time in that invention for the commercialize your technology in the market. Bridging two worlds. First one is the university and second one is the industry. यूनिवर्सिटी के पास क्या है? नॉलेज है, टीचिंग है, रिसर्च है, सर्विस है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आइडियाज है, और फ्रीडम ओपन डिस्क्लोजर है कि आप अपनी इन्वेंशन को अपने अकॉर्डिंग से कुछ भी रिसर्च कर सकते हैं. बट व्हाट अबाउट द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री किसके ऊपर फोकस करती है? प्रॉफिट के ऊपर, कि उनको उस प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर लगेगा, कॉन्फिडेंशियल मैटर कितने होंगे, एंड उसके बाद आपको जो उसका प्रॉफिट आएगा उसको आप कैसे मैनेज कर सकते हैं. इन दोनों को कॉम्बिनेशन से ही आप कमर्शलाइजेशन कर सकते हैं न्यू एंड यूजफुल टेक्नोलॉजी. जब आप मेरे पास पेटेंट एप्लीकेशन भेजते हैं, मेरे पास काफी एप्लीकेशंस आती हैं आपके से और दूसरी यूनिवर्सिटी से, जिससे मैं रिक्वेस्ट यू डैट कि आप उसको पहले एनालाइज करें कि आपकी एप्लीकेशन का पर्टिकुलर यूज क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, क्या वो मार्केट में सेल हो सकती है, यूज हो सकती है. मैंने देखा है बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि आप पेटेंट फाइल करें, एक्स वाई जेड बेनिफिट होगा, बट पर्सनली आई डोंट बिलीव सच टाइप ऑफ थिंग्स. My belief is that until unless your product is not commercialized, then there is no benefit of your applications, especially in the case of patent. Design it somehow is a very cheaper, but still in the case of patent application, you are given your time to do that research. Ultimately, you have to earn money from that invention. What is the role of the patent in R&D? You will prevent from the unauthorized use of your invention by the third parties. आप दूसरे लोगों को रोक सकते हैं कि आप हमारी इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकते. आपने कोई न्यू प्रोडक्ट डेवलप किया उसके लिए भी और न्यू यूज के लिए भी. उसके बाद आप उसको लाइसेंस भी कर सकते हैं बाय टू वे, एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव.
It depends on your invention, by which way you want to protect your inventions. This is the patent activity, and few questions comes in my mind. How to patent drives industries? So basically, it captures the knowledge which extract the compounds innovations and product in the market in the commercialization. So this is the main value of the patent activities. Second, why companies care about IP? बोथ टाइम लोग क्यों इतने कॉन्शियस होते हैं कि हमारी जो आईपी है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए. फर्स्ट वन इज द फ्रीडम टू ऑपरेट. दिस इज बेसिकली ये R&D कंपनीज, नॉट जेनरिक कंपनीज जो मोस्टली बद्दीज के अंदर है कि कुछ भी मैन्युफैक्चर कर दिया, नो बडी केयर अबाउट दैट. लेकिन फ्रीडम टू ऑपरेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. यू आर मस्ट बी एंश्योर दैट कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं कि वो आप किसी को इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेशली कंपोजिशन. कंपिटिटिव एडवांटेजेस. मान लीजिए आपने पेटेंट फाइल किया एंड यू आर द ओनली ऑथराइज्ड यूजर ऑफ दैट इन्वेंशन, तो कोई आपके प्रोडक्ट को कॉपी नहीं करना. दैट मस्ट यू हैव टू चेक इट बाय. दिस इज द नेक्स्ट एडवांटेज ऑफ द पेटेंट एक्टिविटीज, एंड दिस इज द हायरार्की ऑफ द आईपी वैल्यू. फर्स्ट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इन्वेंशन, देन यू हैव टू मैनेज द कंपटीशन. ऐसा नहीं है कि आपने पेटेंट फाइल कर दिया, अब नाउ पीपल आर वाचिंग योर एप्लीकेशन एवरी डे. ऐसा नहीं कि लोग ट्रेडमार्क में ही आपकी एप्लीकेशन को वॉच करते हैं, पेटेंट में भी आपकी एप्लीकेशन वॉच की जाती है कि आपने क्या कंपोजिशन को सबमिट किया है. एंड दूसरी कंपनी आपको अपोज भी कर सकती है या उसके अंदर मॉडिफिकेशन करके एक नेक्स्ट एप्लीकेशन को भी पेटेंट के लिए फाइल कर सकती है. देन यू हैव टू मैनेज योर कंपटीशंस, एंड इन सच केसेस यू हैव टू फाइल द मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ योर इन्वेंशंस. मल्टीपल एप्लीकेशन का यूज क्या है कि आपने डिफरेंट कंपोजिशन में, आपको लगता है वेरिएशन में भी कोई कंपटीटर एंटर हो सकता है, तो आपको एक नेक्स्ट एप्लीकेशन विद डिफरेंट कंसेप्ट को आपको सबमिट करनी पड़ेगी. You have to freedom to design your application and your product in the market. You have to develop markets and relationship. After that, you have to generate the revenue and you can drive the markets. So this is the IP strategy. License in patents. आप अकॉर्डिंगली डिसाइन कर सकते हैं कि आपको अपने पेटेंट को लाइसेंस करना है या अपने आप को एक्सक्लूसिवली सेल करना है. आपको मार्केट के कंपटीशंस को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मार्केट उस प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकती है कि नहीं कर सकती है. So this is the IP environments basically nowadays. Some are the few established leader in the market who can compete you in the field of IP, and some customer maybe arises question about your credibility. Sometime मैंने देखा आजकल इंडिया में ट्रेंड चल गया, स्पेशली इन द केस ऑफ गुजरात की, आप अपने एप्लीकेशन में पेटेंट अप्लाइड लिख दें तो इजिली प्रोडक्ट सेल होता है. इवन आई हैव सीन द दिस टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन द केस ऑफ सफोला ऑयल आल्सो. सफोला पे लिखा हुआ था कि पेटेंटेड ऑयल, एंड आई वाज सरप्राइज कि इसके ऊपर पेटेंटेड क्यों लिखा हुआ है. तो मैंने चेक किया, देयर इज सम स्मॉल इन्वेंशन, उसके बेसिस पे जस्ट एक पब्लिक स्ट्रेटजी, पब्लिसिटी स्ट्रेटजी के लिए उसको प्रोडक्ट्स के ऊपर पेटेंट अप्लाइड लिखा हुआ था. So most of the times companies use such type of techniques to sell their products in the markets. What is the intellectual property key in the R&D? First in the R&D में क्या क्या हमें रिस्क हो सकते हैं, अनसर्टेन होता है, कॉस्टली होती है, एक कॉम्प्लेक्स होती है. लेकिन आईपी में क्या होता है, अगर आपने अपने R&D को प्रॉपर तरीके से आईपी में प्रोटेक्ट किया है, you will get a rewards of your discovery, attributes ownership, facilitate knowledge and codifies knowledge. मैंने आपको बायोकॉन का एग्जांपल बताया इन द वुमेन आईपी ड्राइव्स में. बायोकॉन एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने आईपी से इतने सारे टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया टू अदर कंपनीज टू मैन्युफैक्चर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, लाइसेंस किया और उसको यूज करने के लिए सेल किया. जितने भी आपको वर्ल्ड वाइड कंपनीज मिलेंगी जो प्रॉफिटेबिलिटी में जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द आईपी प्रोटेक्शन. नो वन इन द सिंगल कंपनी इन द वर्ल्ड जो बिना आईपी के अपने आप को स्ट्रेंथन कर लिया. बिकॉज आईपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर, नॉट इन द टर्म्स ऑफ पेटेंट, even every aspect of your IP rights. So this is another parameter I will repeat again. Government of India has given some advantages for the expedited examination of application. जैसे सर ने कहा कि आजकल डिफरेंट टाइप की बॉडीज हैं जो आपकी एप्लीकेशन को, आपकी एप्लीकेशन ग्रांट है, पब्लिश है, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉलम दिए होते हैं. अगर आप अपने पेटेंट को फास्ट ट्रैक पे ग्रांट करवाना चाहते हैं, देयर इज वन प्रोविजन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. You have to submit form 18B, fees rupees 8,000. If you are a startup, तो आपका एप्लीकेशन फास्ट ट्रैक से कंसीडर किया जाएगा. If you are a small entity,
अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई सर्टिफिकेट है, तब आपको फास्ट ट्रैक से कंसीडर किया जाएगा। अगर आप कॉम्पिटिटेंट इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी, ये मे बी कंफ्यूजिंग फॉर यू, मींस इट मींस दैट कि अगर आप मल्टीपल कंट्रीज में पेटेंट फाइल करते हैं और इंडिया को अपनी मेन कॉम्पिटिटिंग इंटरनेशनल सर्च अथॉरिटी कंसीडर करते हैं, तब आपके एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक से कंसीडर किया जाएगा। और आपकी एप्लीकेशन में एटलीस्ट 1 वुमेन एप्लीकेंट है, तब आपके, इन द केस ऑफ एप्लीकेंट नॉट इन्वेंटर, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, आपकी एप्लीकेशन में एप्लीकेंट होने चाहिए, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप अप्लाई करते हैं, देन योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड एज ए फास्ट ट्रैक। So this is all about the IP. If you have any question, you are free to ask me. Thank you. Any question? Yes, sir. Yes, sir, please. Sir, please give some example related to infringement in pharmaceutical sciences. Pharmaceutical How- infringement cases. Yes, sir. Yes, sure. Firstly, I will speak about the patent rights. I already explained one case of patent infringement. There is a one company, Novartis, whose manufactured one is a popular product and which is patented more than 40 countries across the world. And they are already taking a lot of money from that patented invention. After that, they have changed just a solubility and changing some their derivatives. And they are again filing a patent application just to say that this is a completely total new invention. But that application is refused by the Controller General of Patents. After that, it is refused by the High Court. And after that, it is refused by the Supreme Court. Meanwhile, parallelly, Cipla has manufactured same composition in the market without the permission of that company. So in that case, that company is allowed to sell their product in the market because they are completed their 20 years periods. So when 20-year period is complete, anybody can manufacture same type of composition, even same molecule in the market. So this is the example of the infringement cases in the case of patent. Another in the case of the infringement cases of trademark. Suppose if you have a two brand names and having a same molecule name, like for example आप Cefixim सेल कर रहे हैं और आपने ब्रांड नेम रख लिया Cefix, CEFIX, and you are using this brand since 2000, and somebody is using a brand name CEFEX, Cefix, but that person is using a brand since 1998. So in that case, even both the products having a similar phonetically name, but the both peoples are allowed to use same brand name because their product having a value in the market and having a good identification in the market. So this is the case of the trademark infringement. राहुल जी, एक क्वेश्चन है विद योर ड्यू परमिशन. Yes, please. सपोज ऑल्दो अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई है, बट सपोज कोई एप्लीकेंट मल्टीपल कंट्री में एक ही सिंगल एप्लीकेशन, मींस फॉर एग्जांपल पीसीटी रूट से जा रहे हैं हम लोग, सो देयर इज अ डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर दिस पीसीटी रूट, जहां पे हमें डिफरेंट कंट्री को टिक करना है जस्ट, और पैरेलली हर कंट्री में हमारा पेटेंट अप्लाई हो जाएगा. तो मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मेरी एप्लीकेशन हर कंट्री में एग्जीक्यूट होगी, या कोई एक कंट्री होगा जो ये डिसाइड करेगा कि मेरी एप्लीकेशन पेटेंटेबल है या नहीं, और रेस्ट ऑफ द कंट्री उसी डिसीजन को फॉलो करेंगे? That is a very important question and mostly लोग इस बारे में नहीं सोचते हैं. आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा. मैं इनको बहुत क्लियर कर देता हूँ ऑडियंस को. सर ने क्या पूछा? सर ने पूछा कि अगर हम इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो क्या वो एप्लीकेशन को कोई एक कंट्री डिसाइड करेगा ग्रांट होगी कि नहीं होगी, या हर कंट्री डिसाइड करेगा? राइट सर? राइट सर. फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी समटाइम पीपल सेड दैट कि हमारा वर्ल्ड पेटेंट दिलवा दो, वर्ल्ड पेटेंट. एज सच देयर इज नो वर्ड वर्ल्ड पेटेंट. यू हैव टू अप्लाई इन ईच कंट्री. आइदर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू दैट कंट्री, आप उस पर्टिकुलर कंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं, या सर ने जैसे कहा कि अगर आप पीसीटी से अप्लाई करते हैं
व्हाट इज पीसीटी? पीसीटी एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसको वाइपो मैनेज करता है, जो आज वर्ल्ड आईपीआर डे सेलिब्रेट कर रहा है। उसके द्वारा सिर्फ आप पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं इन मल्टीपल कंट्रीज। पीसीटी सिर्फ डिसाइड करेगी कि आपकी एप्लीकेशन उस कंट्री के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट कंट्री, बिकॉज एवरी कंट्री हैज देयर ओन बेसिक लॉज। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कॉपीराइट को भी पेटेंट कंसीडर किया जाता है, बट इंडिया में सॉफ्टवेयर को पेटेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाता। तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग वो उसको ड्राफ्टेड करेंगे, मैनेज करेंगे और वहां पर एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। लेकिन पीसीटी के पास ये राइट्स नहीं है कि वो उसको ग्रांट करे या रिफ्यूज करे। ये ग्रांटिंग और रिफ्यूजल का राइट्स उस कंट्री के पास है जिस कंट्री में आपने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की, और ये डिसाइड कोई भी एक कंट्री नहीं कर सकती। समहाउ क्या होता है कि किसी कंट्री में पेटेंट एक्सेप्ट हो जाता है और किसी कंट्री में वो पेटेंट रिफ्यूज हो जाता है। ऑल राइट सर। अंडरस्टैंड सर? इट्स नॉट लाइक दैट कि ऐसा नहीं है कि आपने फाइल किया तो, बट इन दैट केस एडवांटेजेस मिलता है। मान लीजिए आपके किसी कंट्री में पेटेंट ग्रांट हो गया फर्स्टली, तो दूसरी कंट्री भी उसी ग्राउंड्स पे आपके पेटेंट को ग्रांट कर सकती है, बट दैट इज नॉट एन मैंडेटरी। और पीसीटी के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो डिसाइड कर सके कि पेटेंट ग्रांट होगा। दे विल जस्ट हेल्प यू। आपके पास जो रिपोर्ट आएगी उसको एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प करेगा कि आपने रिप्लाई किस तरीके से जनरेट करना है। सो इस केस में दे हैव इंटरनेशनल कंसल्टेंट फॉर योर हेल्प। तो इस केस में पीसीटी का काम केवल एज पर द रेगुलेशन ऑफ द डिफरेंट कंट्री मेरी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करना है, इज इट? यस, पीसीटी इज an international treaties in which more than 200 countries are members. India is also the member of PCTs. They just help you for forwarding your application, for searching your application, for making a application as per the guidelines of that country. Okay sir, thank you. That will also help you convert your application in particular region language. सपोज आपने चाइना में पेटेंट फाइल करना है तो चाइना के अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन को चाइनीज लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर एक डाउट है मेरे मन में, डाउट तो नहीं, खैर एक कंसर्न है कि अभी तक पूरे, चाहे हम लोग रिसर्च, मैं आपको अपनी बात बोलूं तो मुझे 2019 से पहले मुझे पेटेंट्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। हाँ पेटेंट है, पढ़ रखा है, सब कुछ है, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न मुझे नहीं पता थी या अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन सर आज 2019 से 2023 तक अगर मैं बोलूं 4 साल बीत चुके हैं, अभी भी स्टूडेंट्स के मन में, या इवन मैं अपनी फैकल्टी की अपनी बात बोलूं तो उतना नहीं है कि सो दैट वी कैन थिंक ऑफ कि हाँ यार काम किया है, पूरा 1 साल लग के हमने काम किया है, अगर मैं एमफार्म की बात करूं तो मुझे पेटेंट करवाना ही है। सर ये अवेयरनेस अभी तक पूरे सब लोगों के अंदर नहीं आई है। मैं सबसे पहली हम बात बनाया जी, आपकी बात पे ही मैं बिल्कुल एक रिप्लाई देना चाहता हूँ। हमें पेटेंट फाइलिंग से फोकस करने के बजाय पेटेंट सर्चिंग पे फोकस करना चाहिए। दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। आपका पेटेंट सर्च जितने अच्छे से होगा, पेटेंट ग्रांट होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। आप एमफॉर्म के स्टूडेंट को हायर करते हैं फर्स्ट ईयर में, आप उनसे मैक्सिमम 3 to 4 मंथ्स पेटेंट सर्चिंग पे काम कराएं और कुछ नहीं करना। उसका फर्स्ट आउटकम क्या आएगा मैं आपको मैम ये भी बताता हूँ। आपका इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर पब्लिश होगा रिसेंट पेटेंट्स ऑन ड्रग डिलीवरी, जिस पर वो सिर्फ पेटेंट्स का ही रिव्यू लिटरेचर पब्लिश करते हैं। उसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अपनी एप्लीकेशन को जस्ट सिंपल अप्लाई कर देना है। उसके बाद इवन आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू वांट। तो उसके बाद आपको एक गवर्नमेंट एग्जामिनर आपको एक रिपोर्ट जनरेट कर देगा कि व्हाट इज द आउटकम ऑफ योर पेटेंट रिसर्च। जब आप अप्लाई करेंगे, वो जो आउटकम आएगा, कल को वो स्टूडेंट पीएचडी करना चाहता है तो उसके पास एक ग्राउंड प्रिपेयर हो जाएगा कि ये वर्क ऑलरेडी उसमें डन हो चुका है, क्योंकि पेटेंट ऑफिस आपको एक लिटरेचर भी देगा। मैं तो ये मानता हूं कि पेटेंट सर्च कराने का, पेटेंट एग्जामिन करने का, फाइल करने का फायदा ये भी है कि आपको पीएचडी में एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा है कि वर्ल्ड वाइड इसमें कितना काम हो चुका है। दैट इज द बेनिफिट। तो उसके बाद अगर वो राहुल जी, जी आपने ये बड़ी अच्छी बात कही कि जो पेटेंट सर्च इज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2-3 महीने लगने चाहिए। तो जो पेटेंट सर्च जैसे जो बच्चा
पेटेंट फाइल करता है, डायरेक्ट फाइल कर देता है विदाउट नोइंग दैट व्हाट इज द यूटिलिटी, क्योंकि फाइल करना तो सरल प्रोसेस है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उसकी एप्लीकेशन आगे चल के क्या है या फाइल। तो इसको पेटेंट सर्च के लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया एक बच्चे को ध्यान रखने चाहिए एंड हाउ मेनी कीवर्ड्स, जिससे कि वो ये फाइंडिंग आउट कर सके कि जिस चीज को वो सर्च कर रहा है वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। Yes, sir. There is a one database that is called Patent Scope. ये वाइपो के ऊपर ही अवेलेबल है, जिसपे मोर देन 70 कंट्रीज का डेटाबेस एट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जैसे अगर आप थॉमसन रूटर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, और भी कई पोर्टल हैं, जैसे आप अपने जर्नल के भी पब्लिकेशन के सर्च करने के लिए लेते हैं, पेटेंट के भी अवेलेबल हैं। बट इट्स बेटर कि आप खुद सर्च करें, उससे आपको लर्निंग भी होगी, और जितने ज्यादा पेटेंट आप रीड करेंगे, उससे ज्यादा आपको पेटेंट को लिखने का भी आइडिया हो जाएगा कि हमने उसको कैसे लिखना है। अभी एक पेटेंट आया था मेरे पास आपके कैंपस से ही, उसमें उन्होंने काफी जगह लिखा हुआ था मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में मेथड ऑफ ट्रीटमेंट लिख दिया, तो पेटेंट एग्जामिनर ने आपका पेटेंट ग्रांट करना ही नहीं है। आप जितना मर्जी समझा दो उनको, वो किसी भी हालत में एज पर द सेक्शन 3L और K उसको ग्रांट ही नहीं कर सकते, सॉरी 3I, क्योंकि मेथड ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री। आपको लिखना पड़ेगा कि इट इज ए डिवाइस एंड व्हाट इज द यूजेस ऑफ दैट डिवाइस, कंपोजिशन के लिए मिलेगा। क्योंकि आपने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट लिख दिया, उसमें वो पेटेंट ग्रांट नहीं कर सकते, उनको अलाउड नहीं है। द लैंग्वेज आपकी ऐसी होनी चाहिए दैट मस्ट बी कंफ्यूज टू द पेटेंट एग्जामिनर। एंड बोलना तो नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ कि आप अपनी रिसर्च के एक्सपर्ट होते हैं, एग्जामिनर नहीं होता। जितना ज्यादा आप कॉन्फिडेंस होंगे अपनी रिसर्च को लेके, आपके पेटेंट के ग्रांट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। इट्स ऑल अबाउट दी, मेरा पर्सनली मानना है कि पेटेंट ग्रांट कराना ज्यादा आसान है पेटेंट पब्लिश कराने से, सॉरी रिसर्च पेपर पब्लिश कराने से। क्योंकि मैंने भी पीएचडी के टाइम काफी रिसर्च पेपर सबमिट किए थे, और अगर मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं एमफॉर्म के टाइम भी काफी सारे पेटेंट ग्रांट करा सकता था। इट इज वेरी इजी, बट यू मस्ट हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट योर रिसर्च। आपने जो सबमिट किया है, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट दैट इज नोवेल इन नेचर एंड दैट मस्ट हैविंग सम इन्वेंटिव स्टेप्स। और वो कैसे पता लगेगा? वो पेटेंट सर्चिंग में पता लगेगा। आप पेटेंट स्कोप का एक पूरा सर्च करिए, उस पे पेटेंट मिलते हैं, उस पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। सपोज कीजिए आपने उस पे डाल दिया पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अब ऐसा तो नहीं है कि पल्सेटाइल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सिर्फ फार्मास्यूटिक्स में भी आता है, कई जगह वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यूज होता है। कई टाइप के इंजेक्शंस होते हैं जो पल्सेटाइल के थ्रू दिए जाते हैं। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पर्टिकुलर रीजंस के कौन से प्रोडक्ट इन्वेंशंस उसमें अवेलेबल हैं। आपको वो कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करना है। पहले आप मॉलिक्यूल का नेम डालिए, फिर आप मेडिसिन का नेम डालिए, फिर उसके बाद उसके कंपाउंड्स का नेम डालिए, फिर उसके बाद उसकी क्लास का नेम डालिए। आपके पास एक इंटरनेशनल सर्च क्लास भी आ जाएगी, जिसके बेसिस पे आप उसको आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको आप निकाल भी सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से। फिर मैं कह रहा हूँ, जितनी ज्यादा पेटेंट सर्च स्ट्रॉन्ग आपकी होगी, उतने पेटेंट ग्रांट होने के चांसेस आपके ज्यादा होते हैं। तो ये आप एक्सरसाइज बना लीजिए, स्पेशली पीएचडी के लिए भी। अगर आप किसी पीएचडी स्टूडेंट को एनरोल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 6 मंथ आप उसको सिर्फ पेटेंट सर्चिंग पे लगाएं। इमीडिएटली फाइल करवाएं, पीएचडी होने से पहले पहले उसके 2-3 पेटेंट ग्रांट हो जाएंगे। Yes, sir. One related question from Mr. Swanand Kulkarni. He is research scholar at Central University of Punjab, Batinda. He has asked that how to check the novelty of process and product. I think Mr. Kulkarni has got his answer. If you want add something, sir, please. Sir, I want to add few things. Most of the time people get confused between product patent and process patent. In simple language I can say that suppose आपके पास paracetamol की tablet है, that is not patented nowadays, understand? तो क्या हम पैरासीटामोल को नए तरीके से मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको हम पेटेंट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते? करवा सकते हैं। The way of manufacturing of new way by the paracetamol product, we can get patented rights. But ऐसा नहीं कि हमें प्रोडक्ट के लिए मिलेगा, सिर्फ हमें उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए पेटेंट राइट्स मिलेंगे। अंडरस्टैंड? अब कहेंगे कि आउटकम प्रोडक्ट तो पैरासीटामोल ही है। अब आप देखेंगे, मैं आपको मे बी जस्ट फनी फॉर यू,
आपने देखा होगा शुगर केन का जूस बनाते हैं, कई लोग बहुत सारी बड़ी मशीन यूज करते हैं, आजकल हैंडमेड घर में यूज होने होम यूज वाली भी आ गई हैं, लेकिन दोनों में ही जूस निकलता है। लेकिन व्हाट इज द यूजफुल एंड व्हाट इज द मोर कन्वीनियंट वे? जब हमारे पास इजीएस्ट वे है उस मशीन को यूज मैन्युफैक्चर करने का, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी कौन यूज करेगा? आज के टाइम में कितने लोगों के पास नोकिया 1100 है? इवन कि इन फ्यूचर में भी ये टेलीफोन भी खत्म हो जाएंगे। पर्सनली आई बिलीव दैट आपके पास सिर्फ स्मार्ट वॉच ही रहेगी जिसमें आप सारी फंक्शनिंग कर सकते हैं। एंड देयर आर फ्यू क्वेश्चंस इन द चैट बुक आल्सो। Yes, Can you sir. please explain how much expenditure it will take to make something fully patentable? It depends on your invention, sir. कि कितना एक्सपेंडिचर आएगा, उस पे कितने क्लेम्स हैं, कितनी ड्राइंग्स हैं, कितने उसके अंदर पेजेस हैं। जो मिनिमम गवर्नमेंट फीस होती है पेटेंट फाइलिंग की वो 1600 रुपीज होती है, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से हैं, अगर आप स्टार्टअप हैं, अगर आप एमएसएमई हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तब आपको 1600 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। अगर आप किसी इंडस्ट्री से हैं तो आपको उद्यम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको अपने नाम से एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो आपको गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। देन यू हैव टू पे ओनली 1600 रुपीज। इसके अलावा आपको फर्स्ट एग्जामिनेशन रुपीज फीस पे करनी पड़ती है 4000 रुपीज ओनली। और अगर आप अर्ली अर्ली पब्लिकेशन करवाना चाहते हैं देन यू हैव टू पे ओनली 2500 रुपीज। तो टोटल गवर्नमेंट फीस हो गई 8100 रुपीज। यू हैव टू पे ओनली 8100 रुपीज गवर्नमेंट फीस प्लस प्रोफेशनल फीस। इट डिपेंड्स ऑन योर कि आप किस प्रोफेशनल को हायर कर रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज एंड एरिया ऑफ रिसर्च कि आप किस एक्सपर्ट को हायर करना चाहते हैं। Yes, तो sir. लमसम मार्केटिंग प्रोफेशनल फीस को मिला के 50 to 60,000 एक्सपेंडिचर इसमें आता है। Thank you, sir. Sir, one more question from Mukesh Chandar. Mukesh Chandar has asked, we have standardized a method to extract bioactive compounds from Raulfia plant without using alcohol. It can extract very high amount of bioactive compounds. Can we patent it? देखिए पहली बात तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछने नहीं चाहिए। अगर पेटेंट होगा तो मैं और ये यूट्यूब पे भी सेशन आ रहा है, डिस्क्लोज हो जाएगा सारा आइडिया एंड समबडी कैन कॉपी इट। अंडरस्टैंड? यू हैव टू मेल सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मैं रिप्लाई करूंगा तो मेरा भी ऑथेंटिकेशन ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके के क्वेश्चन मत पूछें जिसमें पेटेंटेबल कंसेप्ट्स होते हैं। फर्स्ट यू हैव टू फाइल द पेटेंट एप्लीकेशन, आफ्टर दैट यू कैन डिस्क्लोज टू एनीवन। इन जनरल मैं कह सकता हूँ कि कोई भी पेटेंट एक लाइन में नहीं डिसाइड किया जा सकता कि वो पेटेंट ग्रांट होगा कि नहीं होगा। देयर आर मैनी पैरामीटर्स ऑन वन एप्लीकेशन जिसकी वजह से पेटेंट का डिसाइड किया जाता है। अंडरस्टैंड? एक बालक सर ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट विल बी द मोर इंपोर्टेंट एस्पेक्ट टू राइट ए क्लेमिंग फॉर पेटेंट्स? दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जांपल, एक क्वेश्चन। अब आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कंसिस्टिंग और कंटेनिंग। ये दो एक ऐसे वर्ड है फार्मास्यूटिकल में जो आपकी पूरी एप्लीकेशन को चेंज कर देते हैं। कंसिस्टिंग में कितने अमाउंट में, कंटेनिंग कितने प्रोडक्ट उसके अंदर है। ये दोनों पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप अपनी एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करते हैं। जब आप अपने ड्राफ्ट के क्लेम्स लिखते हैं, पहला एक आपका इंडिपेंडेंट क्लेम होना चाहिए, दैट इज द बॉडी ऑफ द योर इन्वेंशन, जिसमें आप बेसिक बात लिखेंगे कि आप किसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद डिपेंडेंट क्लेम होंगे, इंडिपेंडेंट के ऊपर डिपेंडेंट क्लेम होंगे। जैसे सपोज करें आपने मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल यूज किए ए बी सी डी ई अपनी कंपोजिशन में, तो आपने जो आपकी कंपोजिशन का मेन आउटकम है वो आपने इंडिपेंडेंट क्लेम में लिखना है। उसके बाद आपने कंपाउंड ए कितने अमाउंट में डाला है उसमें लिखना है, बी किस तरह डाला है वो लिखना है, सी डी। इस तरीके से आप 5 क्लेम्स और लिखेंगे, टोटल 6 क्लेम। 7th क्लेम लिखेंगे कि आप उसको किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, या कोई और इन्वेंटिव पैरामीटर्स जो आप उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं वो आप उसमें ऐड करेंगे। तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पेटेंट क्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राजेश, सर इज इट पॉसिबल टू पेटेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉलिक्यूल? यस, दैट इज पॉसिबल। नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को हम पेटेंट नहीं करा सकते। अगर आपने कोई जेनेटिकली मॉडिफाई किया
दिस इज द सेक्शन 3C ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट। किसी भी थ्योरी को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, किसी भी डिस्कवरी को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, किसी भी नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स को हम पेटेंट के लिए फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इज ए डिस्कवरी। नेचुरल माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इट इज ए डिस्कवरी, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड इज ए नॉट ए डिस्कवरी। आपने उसमें इन्वेंशन की और आपने उसको चेंजेस किया अकॉर्डिंग टू देयर यूज, सो वी कैन फाइल फॉर द पेटेंट एप्लीकेशन। How to distinguish between patented formulation and generic product in the market? ये हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं पेटेंटेड फॉर्मुलेशन जेनेरिक प्रोडक्ट? मोस्टली कंपनी अपने प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट नंबर लिखते हैं, अदरवाइज कुछ बुक्स अवेलेबल है, ऑरेंज बुक है जैसे, और आप ऑनलाइन भी जाकर उस इंग्रेडिएंट के बारे में डाल सकते हैं। अदरवाइज मोस्टली कंपनी अपना पेटेंट नंबर भी कई बार मेंशन करती है ग्रांट होने के बाद, दिस इज आवर रजिस्ट्रेशन नंबर। अब मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है, आपने काफी पूछ लिया, मैं भी पूछ लेता हूँ, जस्ट योर नॉलेज। वैसे संत जी ने काफी अच्छी एक्सरसाइज की थी, बड़े अच्छे क्वेश्चन आए थे, आई एम रियली इंप्रेस्ड बाय श्री संत जी, डॉक्टर संत। मेरा क्वेश्चन आपसे, मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया, अंडरस्टैंड, आपने उस मार्केट में प्रोडक्ट सेल किया किसी का पेटेंटेड, तो वो जिसका पेटेंट है वो आपको कब आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है? जब उसने पेटेंट फाइल किया तब से, जब उसका पेटेंट पब्लिश हुआ तब से, जब उसका पेटेंट ग्रांट हुआ तब से, या जब उसने मार्केट में बेचना स्टार्ट किया तब से। यू हैव 4 ऑप्शन। मान लीजिए आपने किसी का पेटेंटेड प्रोडक्ट कॉपी किया और आप सेल कर रहे हैं उसको, तो वो व्यक्ति आपसे कब से रॉयल्टी मांग सकता है या आपके खिलाफ कब एक्शन ले सकता है? जब उसका पेटेंट फाइल हुआ तब से, जब उसका पेटेंट पब्लिश हुआ तब से, जब उसका पेटेंट ग्रांट हुआ तब से, या जब उसने मार्केट में लॉन्च किया तब से। मान लीजिए उसने लॉन्च ही नहीं किया मार्केट में, आपने पहले लॉन्च कर दिया, तो वो आपको कब क्लेम कर सकता है या आपके खिलाफ कब एक्शन ले सकता है? यस एनीवन? यस सर, मैं आंसर करूं? यस यस प्लीज नितिन जी। सर कोई भी कैंडिडेट जब से उसकी प्रायोरिटी फिक्स हो गई है, मींस एनी टाइम जब उसने पेटेंट फाइल किया है तब से वो क्लेम कर सकता है। यस, अब आंसर इज नॉट लाइक दिस, ये आंसर ठीक नहीं है। जब तक उसका पेटेंट ग्रांट नहीं होता, मान लीजिए नितिन जी आपने भी पेटेंट फाइल किया और संत जी ने 2 दिन के बाद आपका पेटेंट कॉपी कर लिया, इट इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, आपका पेटेंट ग्रांट नहीं हुआ, संत जी अच्छे से उसको कॉपी कर रहे हैं और उससे रॉयल्टी भी गेन कर रहे हैं, लेकिन जब तक आपका पेटेंट ग्रांट नहीं होता आप संत जी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन आफ्टर द ग्रांट ऑफ योर पेटेंट एप्लीकेशन, संत जी ने कितनी रॉयल्टी कमाई, कितना पैसा कमाया अपने पेटेंट से, वो आप उनसे तब से ले सकते हैं जब से उनका पेटेंट आपका फाइल हुआ। लेकिन लीगल इन्फ्रिंजमेंट तब स्टार्ट होगी जब आपका पेटेंट ग्रांट होगा। क्लियर सर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कल को इंडस्ट्री में जाएंगे, एम फॉर्म के स्टूडेंट्स भी हैं, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन कि इन्फ्रिंजमेंट का केस हम कब फाइल कर सकते हैं या एक्शन ले सकते हैं। सर एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रॉम डॉक्टर सुनंदा, दैट इज ब्लेडियाज SSM कॉलेज ऑफ फार्मेसी कर्नाटका। जी सर। Dr. Sunanda has asked what happen if the person infringes anyone's IPR? It is not a criminal offense, it is a civil offense. You have to pay the royalty to that person, you have to pay the damages to that person only. This is the outcome of the patent infringement. Thank you, sir. There is no criminal offense in this case. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, one more question from Deepshikha Patle. She has asked this question from while registering and also on YouTube. Madam is working as a faculty at GHG, Khalsa College of Pharmacy. Madam has asked about what is the detailed process of filing a design patent. डिजाइन पेटेंट में आपका डिजाइन न्यू होना चाहिए एंड ओरिजिनल होना चाहिए। यू हैव टू सबमिट द फोटोग्राफ्स फ्रॉम 360 डिग्री एंगल एंड यू हैव टू मेंशन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इन्वेंशन एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट इन्वेंशन
you have to submit this application to trademark office Kolkata. After the examination, if he or she satisfied by your design, then certificate will be issued. अगर उनको कुछ किस तरीके से कोई प्रॉब्लम है आपके डिजाइन से या नोवेल्टी नहीं आती, then they will raise a objection regarding your representation sheet, regarding your use of your invention, regarding the class of your product. They can raise your objection against this. Otherwise, it will be a grant. Thank you, sir. One more question from Dr. Silpi Prasad. Madam is currently working as a faculty at Siddhivinayak Institute of Pharmacy, Bilaspur, Chhattisgarh. Madam has asked that how much time the patent take in the grant from filing. देखो, this is very general questions कि अब ग्रांट होने में कितना समय लगेगा. It's depend on you कि आप उसको कितनी जल्दी ग्रांट करवाना चाहते हैं. If you are submitting all the forms at the stage of filing, then your patent maximum will be granted within 1 year. लेकिन उसमें एक प्रोविजन होता है कि आपने 4 साल के अंदर आपको एग्जामिनेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है. आपने 4 years के अंदर अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट ही नहीं सबमिट की, then your patent will take a more than 5 to 6 years. जितनी जल्दी आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेंगे एग्जामिनेशन रिपोर्ट का, आपका पेटेंट उतनी फास्ट ट्रैक से कंसीडर किया जाएगा. और अगर आप एज ए वुमेन एप्लीकेंट है तो आप फॉर्म 18 भी सबमिट करिए, तो आपका मैक्सिमम 1 year के अंदर पेटेंट ग्रांट हो जाएगा, मैक्सिमम. Thank you, sir. Thank you, sir. One more question from Dr. Chanchal Naveen Raz. Sir is faculty at Sri D.D. Vispute College of Pharmacy. Sir has asked about the packaging design rights, how to get and what are the benefits. पैकेजिंग डिजाइन राइट्स, यस. मैं आप लोगों से एक और भी कहता हूँ, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पैकेजिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल. अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में काफी सारी इनोवेशंस आई, इन्वेंशन आई, लेकिन स्टिल पैकेजिंग स्टाइल इज सेम. वही स्ट्रिप एंड ब्लिस्टर वी आर यूजिंग फ्रॉम लॉन्ग अगो, बिकॉज दिस इज इकोनॉमिक एंड चीप टू यूज एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी इजी होता है. स्टिल इफ यू आर यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग स्टाइल, you can protect by the industrial design as well as through the patent, but it depends on your packaging. If it is having some technical feature, then you can protect by the patent rights, but if it is just a outer appearance and just a box, you can protect by the design protection. So rights in the case of design protection, you will get it for 15 years, 10 plus 5. Initially you will get for the 10 years, you have to renew for the next 5 years. After that, anybody can copy your design, but in the case of patent, you will get a rights for the 20 years. Sir, more general question on IPR day from one of the participants, that how IPR is beneficial to mankind. अच्छा. Or this question was asked by Muhammad Harun Ansari. He is from Indira Gandhi National Tribal University. It is National University at Amarkantak, MP. Thank you for asking such type of question, and it is a very important question. How IPR is important for mankind? Mankind is a one pharmaceutical company itself. IPR basically to protect the balance between one country to another country. Suppose if one country is not following the IP rights, then other countries take advantages of that rights. To make the balance between mankind, IPR rights plays a very important role. Especially this is the reason India is sometimes called as the anti-IP country. क्योंकि इंडिया का जो IP rights है, that is a very balanced act. यहाँ पर किसी को भी evergreen patent के लिए rights नहीं मिला जाता, but in some other countries, they people take advantages of that rights. But India is a very lenient country. They people give rights to only to the authorized person, not to everyone. And if you get a patent rights and at a proper time, then you can distribute your knowledge at free of cost also, rather than copy by someone else. So, suppose if you can see so many scientists who generate so many things, but their invention is not as per the patent rights, but they will not get any type of rewards, advantages, and financial benefit also.
even somehow their technology is protected by some other persons. So for the mankind, you must protect your knowledge, and you can distribute at free of cost or paid basis. It's up to you. So it's more very important, because I understand हमें सिखाया गया ज्ञान बांटने से बढ़ता है, but now time has changed. ज्ञान नहीं बांटना, we have to protect it. उसके बाद हम बांटे, चाहे फ्री में या पेड, it's up to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. One more question from Mr. Aman Vishwakarma. He is a student, master's student at Indira Gandhi National Tribal University, Amarkantak. Aman has asked that can we patent a drug monograph? Again, my question is this: if your application having a novelty concept, if your application having an inventive step, then everything is patented. Either it is a monograph or some type of derivatives. You have to fulfill all three criteria, and on the basis of one single line, it cannot be decided if monograph can be patented or not. Yes, you will get a rights on the monograph also, but it must fulfill the criteria of patentability. Thank you, sir. Sir, one more general question from number of participants. I think more than 10 participants have asked this question, that who will be the right successor of IPR? They want to know who will be the successor of IPR and what is the criteria. Successor of the IPR is patent inventor as well as the applicant, or it depends on the policy between inventors and the applicant. But the rights belongs to the applicant, that is the legal rights, but most of the time they are follow some type of policy to use that inventions and that concept. So IPR successor is depends on your invention sometime. इंडिया में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो साइलेंटली काम करते हैं और पेटेंट से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट करते हैं टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट. आई नो फ्यू वंस, इवन इन द केस ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जिन्होंने सिर्फ 2-3 पेटेंट से ही काफी सारा पैसा कमा लिया, एंड दे आर डेवलपिंग देयर टेक्नोलॉजी. अगर इंडिया में अंडरस्टैंड नहीं करते तो देन यू कैन कमर्शियलाइज योर प्रोडक्ट आउटसाइड द इंडिया. आपको किसने कहा है कि इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करें? यू कैन कमर्शियलाइज योर प्रोडक्ट आउटसाइड द इंडिया आल्सो. You have to file the PCT application, and in that country you can protect your invention and you can sell your product in that country also. So the right way of the successor is protect your invention at initial time. ऐसा नहीं कि आप वेट करते रहे कि अभी रिजल्ट आएंगे. You just protect your idea by the provisional specification. You will get a time for the 12 months. Still, if you think कि अभी और रिसर्च आनी है, first you can get a rights on the patent. After that you can apply for the patent of addition. Patent of addition क्या होता है, ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं. That is a very important parameter. मान लीजिए आपके पास एक पेटेंट अधिकार मिल गया, सरकार ने आपको एक राइट्स दे दिया, स्टिल आपने अपनी इन्वेंशन के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किया, बट दैट मस्ट बी द कंसेप्ट बिलोंग्स टू दैट इन्वेंशन. तो आप पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं. आपका जो राइट्स है वो 20 इयर्स के लिए होगा फ्रॉम द पेरेंट एप्लीकेशन, और पेटेंट एडिशन के लिए आपको नेक्स्ट 7 इयर्स जो भी आपका टाइम पीरियड बच जाएगा उसके लिए आपको राइट्स अधिकार दे दी जाएंगे. So this is the benefit of the patent additions. Thank you, sir. One more question from Mr. Rakesh Kumar. He is research scholar, PhD research scholar at Central University of Punjab, Batinda. Mr. Rakesh has asked about the can we patent the derivatives of registering drug. I think Mr. Rakesh has got his answer that we can't patent the derivatives. And further he has asked derivatives, but if it is showing some synergistic or having some changes the efficacy, then we get a patent rights. Otherwise, okay, no. Okay, sir. And he has further asked that importance of IPR in pharmacy, especially in pharmacy. इंडिया में आईपी का सबसे ज्यादा एडवांटेजेस फार्मास्यूटिकल साइंसेज ने लिया है और अब ले रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले. एंड आने वाले टाइम में मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ बेनिफिट लेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. अब एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे ऑडियंस से. यू मस्ट गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स. मान लीजिए आपने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक रोबोट बनाया, हु इज ए रिसर्चर, जो एक रिसर्चर है. नाउ वर्ल्ड वाइड इज ए ग्रेट डिबेट ऑन दिस टॉपिक. उस रिसर्चर ने
उस रोबोट ने कोई रिसर्च कर दी, राइट बिलोंग्स टू विच पर्सन, रोबोट को या उस पर्सन को जिसने उसको बनाया है, या उस सॉफ्टवेयर को जिससे वो रन हुआ है, किसको राइट्स बिलोंग करेंगे? Somehow there are few cases even in the court also, rights belongs to which person, because as per the patent act, inventor is the who invent that thing. तो उसने तो वो इन्वेंशन बनाई नहीं है, then who belongs to that rights? Still this is a questionable, क्योंकि रोबोट्स को अधिकार नहीं दिए जा सकते, तो स्टिल ये अभी डिसाइड करना मुश्किल है कि राइट्स किसके पास जाएंगे. Nowadays there is a big debate on these topics in the case of artificial intelligence. Yes, sir. One more general question from Miss Mayuri Yadvaro Saler from Sri D.D. Vispute College of Pharmacy, Maharashtra. She has about what are the initial documents required for the patent filing. इनिशियल डॉक्यूमेंट कुछ नहीं, बस आपको फोर फॉर्म सबमिट करने हैं. यू मस्ट हैव क्लास 2 डिजिटल सिग्नेचर. यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड आल्सो. You have to submit form 1, that is only a single page application in which you have to add applicant name, inventor name, title of your invention and your signature. And in the form 2 you have to submit your complete invention which you are going to file for the patent application, like abstract, claims and summary of your invention, objective of your invention. You have to given your complete disclosure in the form 2. Form 3 basically the undertaking under section 8 कि आप अपना पेटेंट एप्लीकेशन फॉरेन कंट्री में फाइल नहीं करेंगे विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया. ये अंडरटेकिंग देनी है आपको, और अगर आप फाइल करेंगे तो आपको इंडिया को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपने फॉरेन कंट्री में पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की है. फॉर्म 5 इज द ऑथराइजेशन टू द बाय द एप्लीकेंट टू द बाय द इन्वेंटर टू द एप्लीकेंट कि आप ओरिजिनल इन्वेंटर हैं और आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल करना है. आपको 4 फॉर्म सबमिट करेंगे इनिशियली एट द पेटेंट फाइलिंग, सॉरी. तो आपको फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3 एंड फॉर्म 5 4 फॉर्म आपको सबमिट करने हैं. Sir, in continuation to this question, Dr. Silpi Prasad had asked that what is the process of international patent filing? How can we file a patent internationally? You can submit your patent international application by 2 way. Either you can directly choose to that country in which you are going to file a patent application, or you can submit by the PCT. PCT में आप ऑनलाइन मीडियम से भी फाइल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी ऑब्जेक्शन लगा या कोई भी ग्रीवेंसीज आई तो आपको उस कंट्री का अटर्नी हायर करना पड़ेगा, तब आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं. Yes. Somebody asked me this question in the chat box. What is the duration of design patent? The duration of the design patent is for the 10 years, but आप उसको next 5 year के लिए भी renew करवा सकते हैं. Maximum time period is 15 years and the patent duration is 20 years from the date of the filing. Yes, sir. Sir, one more question. How we can commercialize the design patent? मैंने अपनी स्लाइड्स में भी कहा कि आपको अगर अपना कोई भी प्रोडक्ट कॉमर्शलाइज करना है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द नीड ऑफ द मार्केट. सपोज करें आप कोई लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यू मस्ट टाई विद सम कंपनीज हु इज डीलिंग विद सच टाइप ऑफ थिंग्स. जैसे अंबाला में भी बहुत सारी कंपनीज है जो लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं, एंड दे पीपल आर लुकिंग फॉर सच टाइप ऑफ पीपल्स जो उनके इंस्ट्रूमेंट को मॉडिफाई कर सके. मैं आपको हैरानी की बात बता दूं कि अंबाला एक ऐसे टाइम था जहां पर 90% प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता था खुद ही, लेकिन अब टाइम ऐसा आ गया जहां पर सिर्फ 10% ही मैन्युफैक्चर होता है, 90% चाइना से इंपोर्ट होता है. तो टाइम हैज चेंज, बट दे पीपल वांट कि जो उनके प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सके और करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग आपके डिजाइन को लॉन्च कर सके. तो आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा ऐसी एसोसिएशन से. जैसे अंबाला में 2-3 एसोसिएशन है, असीमा है और 2-3 एसोसिएशन है, उनसे आप टाई अप कर सकते हैं, उनके साथ गेट टुगेदर कर सकते हैं. उनके काफी सारे प्रोडक्ट प्रोग्राम्स भी होते हैं, मीटिंग भी होते हैं. उस मीटिंग में अगर आप अपने आप को अपने केसेस को रिप्रेजेंट करेंगे तो आई एम श्योर आपके साथ कुछ कंपनीज 100% इंटरेक्ट करेंगी. Thank you, sir. 2 more questions are there, sir.
what is the importance of copyright if two-person claim same copyright? How to justify it? दिस इज अ वेरी डिबेटेबल क्वेश्चन कि दो व्यक्ति एक चीज के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। ये अक्सर देखने में आया है, जैसे अभी आपने देखा होगा एक पॉपुलर सॉन्ग करण जौहर ने अपनी सॉन्ग में लगा दिया था, बट दैट सॉन्ग इज सिंग बाय सम पाकिस्तानी सिंगर। फिल्म तो खैर नहीं चली थी, वो सॉन्ग काफी चला था। तो ऐसा है कि पाकिस्तान का आदमी या किसी अदर कंट्री का आदमी इंडिया में कॉपीराइट क्लेम कर सकता है? यस और नो, दिस इज वन ऑफ अनदर क्वेश्चन। मैंने आपको जितने भी राइट्स बताए, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब टेरिटोरियल राइट्स है। टेरिटोरियल राइट्स मतलब आपने इसके लिए एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है। अगर आप पेटेंट के लिए राइट्स चाहते हो तो आपको पेटेंट के लिए एप्लीकेशन देना मैंडेटरी है, ट्रेडमार्क के लिए मैंडेटरी है, डिजाइन के लिए मैंडेटरी है। बट इन द केस ऑफ कॉपीराइट दैट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज सेल्फ प्रोटेक्टेड। मान लीजिए संत जी ने भी एक सॉन्ग लिखा, मैंने भी एक सॉन्ग लिखा, हमारा और संत जी का सॉन्ग सेम है। संत जी ने ओरिजिनल सॉन्ग था, मैंने संत जी का सॉन्ग कॉपी कर लिया, संत जी ने मुझसे डिस्कस किया, मैंने कॉपी कर लिया और मैंने वो गाना गा दिया। लेकिन संत जी को प्रूव करना पड़ेगा कि इन्होंने ये सॉन्ग सबसे पहले लिखा है। इनके पास एविडेंस होने चाहिए। अब कैसे एविडेंस होने चाहिए, ये एविडेंस आप कैसे जनरेट कर सकते हैं? मान लीजिए मैंने वो सॉन्ग गाया 1 जनवरी 2023 को, लेकिन संत जी ने वो सॉन्ग मुझे अगर 31 दिसंबर 2022 को भी भेजा होगा, तो राइट्स बिलोंग्स टू संत जी। इनके पास एक ईमेल पे एविडेंस है कि इन्होंने ये मुझसे गाना ये शेयर किया था या कभी भी शेयर किया था, और इससे पुराना एविडेंस मेरे पास नहीं होगा, तो राइट्स किसको मिलेंगे? संत जी के पास जाएंगे। किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए यू मस्ट हैव सम एविडेंस। अगर आप पहले टाइम में लोग क्या करते थे, जब ये ईमेल वगैरह नहीं होती थी, लोग अखबार में अपनी Rahul ji, जी so सर, yes, please complete लोग and then I will. लोग अखबार में अपनी कविता भेजते थे कि मेरी कविता पब्लिश कर दो। अखबार वाला क्या करता था, पत्रकार उनका नाम काट के अपना लिख देता था, रिटन बाय मी, और वो कहते थे ये कैसे हो गया। दैट टाइम दिस एक्ट वाज वेरी वीक, बट नाउ टाइम हैज चेंज। कॉपीराइट बहुत स्ट्रॉन्गर और स्ट्रेंथन हो चुका है। आप उसको क्या करते थे कि जैसे उन्होंने अखबार को पोस्ट ऑफिस से भेजी, सेम पोस्ट वो अपने घर पे भी भेजते थे, और वो इस एनवलप को तब तक नहीं खोलते थे जब तक वो न्यूज़पेपर में पब्लिश ना हो जाए, क्योंकि कल को वो चैलेंज कर सकते हैं कि ये जो है मैंने अखबार में भेजी थी और सेम पोस्ट मैंने अपने घर पे भी भेजी थी। तो डाकिए की स्टैंप लग गई, एनवलप बंद है, खुला नहीं है, तो कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हो कि आई एम द फर्स्ट ओरिजिनल ऑथर ऑफ दैट वन। लेकिन नाउ टाइम हैज चेंज। आप अपने कंटेंट को गूगल ड्राइव पे डाल सकते हो, आप वो कंटेंट अपने आप को ईमेल भी कर सकते हो, या आप कॉपीराइट ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करके वहां से भी सर्टिफिकेट ले सकते हो। तो दिस इज द वे टू प्रोटेक्ट योर कॉपीराइट प्रोटेक्शन। Thanks, sir. Thanks. Sir, one last question is there. Can we patent the shape of a tablet? Can we go for patent the shape of a tablet? टैबलेट की शेप को हम इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए फाइल कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट ए टेक्निकल फीचर। वी कैन प्रोटेक्ट द आउटर अपीयरेंस। मैं आपको किसी दिन जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो आपको सिर्फ डिजाइन के ही ऐसे केसेस दिखाऊंगा लाइव कि आप हैरान हो जाओगे कि लोग क्या क्या प्रोटेक्ट करते हैं। इन द केस ऑफ ओनली फार्मास्यूटिकल, नॉट आउटसाइड द फार्मास्यूटिकल। टैबलेट के ऊपर शेप के ऊपर कोई लोगो लगाया है तब भी आप उसको इंडस्ट्रियल डिजाइन कराते हैं। टैबलेट की डिफरेंट टाइप को जैसे स्टार बना देते हैं, उसको भी डिजाइन के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हैं। शेप ऑफ द टैबलेट्स कैन बी प्रोटेक्टेड ओनली बाय द डिजाइन एप्लीकेशन, एंड मोस्टली लोग फाइल करते हैं, मोस्टली कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय द मिस्टर रॉय। Sir, I have got two more questions. First one is, if I have formulated a formulation like liposane of any plant extract that is not present on the market, can we patent the product or process? Yes, you can protect the product as well as the process. आप दोनों को protect कर सकते हैं. If we isolate a new component from a plant that was not previously isolated from that particular plant, so can we also patent for it? Yes, you will get a patent application for that also. दोनों केसेस में आप प्लांट के आउटकम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट प्लांट इटसेल्फ को आप पेटेंट के लिए प्रोटेक्ट नहीं कर सकते।
Next question by Dr. Amandeep Singh. Dear, is there any software by which we can do the preliminary research for the design patent? डिजाइन पेटेंट का सच कोई रिपोर्ट नहीं है, आपको खुद ही होता है। और वैसे भी डिजाइन के केस में मोस्टली केसेस ग्रांट हो ही जाते हैं। इन फ्यू केसेस दे आर ऑब्जेक्टेड, बट मोस्टली में वो ग्रांट होते हैं, क्योंकि अगर आपके डिजाइन में माइनर सी भी मॉडिफिकेशन है या फीचर्स में भी चेंजेस है या पर्टिकुलर क्लास भी डिफरेंट है, तब भी आपका डिजाइन ग्रांट हो जाएगा। Thank you so much, sir. Hello. Respected director, sir, is there? Sir. So I hope that so all questions, any other inquiries by Sri Sant? Because Dr. Sant is for me, but today's one name is given by Dr. Rahul Taneja ji, Sri Sant. So any queries, Sri Sant, on YouTube or Google Meet? Sir. Hello, sir. There are other queries also. Some specific queries. If there is the common and already the Dr. Taneja ji is taken, then there is no problem. If you feel that some of the specific queries, then you can ask. Otherwise, we can go to wind up. So my opinion over here, after this, the completion of this presentation, we can go for the immediately of the meeting with the online within the 2 minutes after this one. We can first come out and then we again join with this the Google Meet. All HODs, they are required to join so that we can come over here. And Dr. Rahul Taneja ji send the email as well as the phone. So all the audience, please note down, because Dr. Rahul Taneja also provide the consultancy related to the IPR. So if you have any doubt and if you want to publish your work in the form of the patent, design patent and the copyright, he will provide the assistance to also. So I hope that we will also work together, because nowadays patentability is one of the most important part of the all the way, not only for, you can say, academia, this is for the research, academia as well as one part. So any other questions, Sri Sanji? Sir, one more question is there from Miss Janita Sahu from Central University of Bilaspur, Chhattisgarh. Janita has asked that what are the TRIPS obligations? TRIPS obligation basically not to the any individual. It is depend on country to country, and it depends on the invention. Like India is also following all the obligations raised by the TRIPS. Like we have follow all the limits. In the case of patent, maximum duration is 20 years, and we are also following all the agreements signed by the TRIPS agreement, like GATS and other agreement of the. गुड आफ्टरनून सर। सर आज एक तो ये है कि छुट्टी करनी पड़ी, आपको पता ही है। ओके, यस, कंटिन्यू प्लीज, कंटिन्यू। So there is no obligation by the TRIPS in the case of patent application as such in our countries. Thank you, sir. Now I would like to invite our HOD ma'am, Professor Pooja Chawla, and co-coordinator of this event for the briefings and vote of thanks. Over to Pooja Chawla, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah. Thank you so much, Doctor. First of all, thank Dr. Rahul for such a wonderful and interactive session. किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि ये एक लेक्चर था या एक जनरल टॉक है. It was very, very interactive, and sir, you have cleared, and I must say this thing. Every time when I come in contact with you, either online, offline, most of the doubts are clarified. Like today I learned that a women, because today's theme is women oriented, and today I learned that because initially I thought that only the inventor may be a woman, but now you told today you told that the applicant should be a female, then the chances of grants are expedited itself.
So, as we all know that India is continuously, our government is continuously promoting women in field of, maybe it is entrepreneurship, it is patenting, it is research, it is any field. We, the women, are being promoted by government of India, as well as our colleagues also, that we have to, we should not leave any field unturned or untouched. So thank you so much, sir, for clearing this doubt. And sir, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है that you told that the gender gap in patenting. In your video, you showed that. First of all, we saw Dr. Kiran Majumdar, the founder of CEO Biocon, and then there was one slide that was showing gender gap in patenting. Of course, I understand that there are so many. There is a gap between the gender, but as I have already told that India is continuously promoting us, so I'm quite hopeful that very soon this gap will be filled up. Thank you so much, sir. And you have clarified many things, and as I already asked this question, that before 2019, I was not very much aware of the benefits of patenting. And we always, as a teachers, we say that there is no question that is simple. And a very simple question was asked by, I think it was Mr. Haroon, that what is the benefit of IPR. So चाहे हमें पता है नहीं पता है किस level का पता है, ये level of question is very important, and you very well clarified the queries asked by so many viewers online as well as offline. So thank you so much, Dr. Rahul Taneja. So now, as far as this, I am given the opportunity to propose a vote of thanks. First of all, I am thankful to our respected chairman, sir, for providing such a wonderful platform. Always he is there to motivate us and promote us for such type of activities. I am thankful to Dr. G.D. Gupta, sir, and President, Institutions Innovation Council, ISFCP, for being there and helping us in providing this event. Unfortunately, we could not meet you offline, sir, but as our sir always says, the show must go on. So, despite of this holiday, we could easily organize this event. I am grateful to Dr. R.K. Narang, sir, Vice Principal and Vice President, IIC, for being there with us. IIT members, HODs, students, and all the participants, Pan India, who have participated here. I'm delighted to have our. I'm giving you a name, sir, with due permission. अब दोनों में से जो अच्छा लगे, patent man or our IPR man and speaker for today, Dr. Rahul Taneja, and for sparing his time for us. As we all know that today is the World IP Day, and he is being called by many people all over India for his expert talk, and we are really, really thankful to have Dr. Rahul Taneja, and he was kind enough to accept our invitation. Thank you so much, sir. I'm thankful to Dr. Sant Kumar Verma for the coordinator of today's event, and thank you so much for organizing this. I'm equally thankful to Parneet Kumar, IT department, for making this event possible online, because if this could not be possible, so the successful event could not be properly organized. Thank you so much, sir. And finally, I would like to thank IIC as well as the AICT for providing Spices grant. Thank you so much, all of you, for being here. Thank you so much, sir. Please Over to- open your video. Please open your video for group photo. All please. Gurmeet Singh, Seema, Amrinder, Amit ji, Nimesh is okay. Yes, please.
meeting only for 5 to 10 minutes related to the IP. Okay, and all the HOD, Dr. Siddharth Nayan and Dr. Sandeep can join immediately after this. We can close this meeting. So thank you very much, and thanks to all with lot of good wishes. And this IP day is basically for the women, and no doubt women is growing very fast, and I hope that the coming days lot of opportunity, lot of things need the help to the society as well as our culture, because originality